Just a minute. Why manually you are mentioning call 300? You can unmute and answer. Unmute करके answer दे सकते हो. Sir, where? Here. Yes, increment A. After that, what you are doing? Sir, increment after that, I'm calling the address. 3000. Why? Oh, sorry. Central lab. We are not going to call this address manually. Sir, it's working as a counter, but I'm not getting what is the use of the memory we are incrementing. So this is also incrementing, no? HL pointer. Okay. Let me share my screen. Let me explain what I want from you. Okay. Let me share my screen. Yes, Jill, if you have did you can share your screen. Insania, Jill, share your screen and explain what you have did. तो आप किस में कर रहे हो? पेपर पे. ओके. पेपर पे तो हो जाएगा. प्रैक्टिकली करोगे तब पता चलेगा क्या प्रॉब्लम आ रहा है. बिकॉज पेपर पे तो मैं भी ये पेपर पे दिखा दूंगा. चलो ये देखो, जो पेपर पे मैं दिखाना चाहता हूँ वो पेपर पे आपको दिखा देता हूँ. Look at this. First of all, let me zoom in. Okay. So I think fonts are clearly visible. Okay, so observe it over here. What I want to do it first. Look at this. So what I did over here, first I have enabled interrupt. Then using sim instruction, I have unmasked the interrupts, all the interrupt, which all the interrupts 5.5, 6.5 and 7.5. Then I'm maintaining one counter. I am initializing one counter. So I will use one of the register as a counter. So I'm using register A right now. Let's say that. So register A, I will use as a counter. So I'm initializing it 0. It will increment and jump to loop. So this will be my main program. So your counter will be continuously 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3. ऐसा ही आपका main program continuously चलता रहेगा. Okay. Then what we will do, we will generate one interrupt by clicking over here. यहाँ पे जैसे ही आप click करोगे एक interrupt generate होगा. So as soon as you will click over here, this 0 will be 1. ये यहाँ पे 1 होगा. Interrupt हम ऐसे generate कर सकते हैं यहाँ पे. ये हमारे simulator में. यहाँ पे क्लिक करना होगा आपको. सपोज 6.5 जनरेट करना है, सो यू कैन क्लिक इट ओवर हियर. सो जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे वो 1 0 का 1 हो जाएगा, और अगर 1 है तो उसका 0 हो जाएगा. ओके. देन सो जैसे ही आप ये इंटरप्ट जनरेट करोगे, एज सुन एज यू विल जनरेट दिस इंटरप्ट, so we will jump to which location, processor will jump to which location. Consider right now that we have generated 5.5. तो 5.5 इंटरप्ट है तो प्रोसेसर कौन से लोकेशन पे जंप करेगा? प्रोसेसर विल जंप टू विच लोकेशन? 002C. Yes, so that what I have explained, 002C. So यहाँ पे ऑलरेडी इंटरप्ट सर्विस रूटीन के लोकेशंस आपको मिल जाएंगे. सो ये 5.5 का लोकेशन है वो क्या है? 002C. बट अभी 002C पे अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन लिखनी है तो आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो. आई कैन राइट इंस्ट्रक्शन ओवर हियर. सपोज मैं यहाँ पे सब रूटीन में जाके, सपोज इफ आई विल गो ओवर हियर and I can write any instruction here. I can write add instruction. I can write subtract instruction. I can write any instruction. Let's say ADI A01. So it will be executed based on your particular, your 1 byte, or you can say that 3 byte location. क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस है वो 3 byte की है.
सो ये 3 बाइट में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ जो भी आपको ऑपरेशन करना है वो 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो आप, उससे ज्यादा की इंस्ट्रक्शन आप यहाँ से नहीं लिख सकते हो. But if you want to write our own service routine, so we will write it on some location. Let's say that I have written it on 300. And then what I will do over here, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, I will call it over here. Call 3000. Okay, यहाँ पे मैं कॉल करूँगा. जैसे ही 5.5 इंटरप्ट जनरेट होगा, your processor will be redirected over here, and at this location it will found this instruction, call or jump. You can write jump or call, whatever instruction. You can write jump instruction also. That's the jump to 300. Okay, so this is I have written over here. Okay, now on 300, what I am doing, my service routine. So service routine में पहले मैं ये सभी जो रजिस्टर से उसको स्टैक में पुश कर रहा हूँ. Then I am initializing one of the memory pointer, HL pointer को initialize कर रहा हूँ, and I am incrementing that memory location. So ये just indication करेगा, this will just indicate that this 5.5 interrupt is generated. 5.5 interrupt है वो generate हुआ, और वो पहली बार generate हुआ अभी. Now again we will exit from the interrupt service routine. वापस यहाँ पे EI आपको मिलेगा. सो अभी आपने ये सपोज यहाँ पे क्लिक किया होगा, तो वापस वो क्या कंसीडर करेगा, यहाँ पे 1 है तो वो वापस कंसीडर करेगा योर इंटरप्ट इज जनरेटेड. सो अगेन इट विल गो इन दिस सर्विस रूटीन, अगेन इट विल इंक्रीमेंट योर मेमोरी लोकेशन बाय 1. सो ऐसे वो कंटिन्यूअसली यही रूटीन में एग्जीक्यूट होता रहेगा. कब तक, जब तक आप वहां यहाँ पे वापस 1 से 0 नहीं करोगे. सो जैसे ही यहाँ पे आप 1 से 0 करोगे तो क्या होगा, so your particular this location, it will be executed return instructions, and return instruction will be executed to the, and so it will go to your main program. Main program में वो वापस चला जाएगा. Are you getting what I am trying to explain you? क्या करना है आपको? There is a, I am getting one error, or it is little bit, there is some error that I have to check. Yes. INX H तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सेम लोकेशन को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ. अगर आपको मैं एक ही लोकेशन का मीनिंग क्या है, यहाँ पे 4000 मैंने दिया है, तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, लेट्स से दैट 4000 आएगा, तो पहली बार यहाँ पे 4000 लोकेशन पे 01 आएगा, फिर 02 आएगा, फिर 03 आएगा. सेम लोकेशन को मैं इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ. सो मैं मेमोरी लोकेशन को इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ. आई इंक्रीमेंट एम. सो एम क्या करेगा, मेमोरी लोकेशन इंक्रीमेंट करेगा. कौन से मेमोरी लोकेशन को, द मेमोरी लोकेशन विच हैज बीन पॉइंटेड बाय एचएल पॉइंटर. यस, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. वही मैं करना चाहता हूँ. हर एक बार 4000 से ही इनिशियलाइज करेगा, और 4000 लोकेशन को ही मुझे इंक्रीमेंट करना है. एक ही लोकेशन को इंक्रीमेंट करना है. आप ये सब कुछ भूल जाओ, आप सिंपली 2 नंबर का एडिशन करके दो मुझे. चलो ये आप भूल जाओ, ये लॉजिक नहीं चाहिए मुझे. चलो, आई एम रिमूविंग दिस लॉजिक. परफॉर्म 2 नंबर एडिशन हो गया. 2 नंबर एक आप कोई भी रजिस्टर में इनिशियलाइज करो. MVI लेट्स से दैट P, MVI लेट्स से दैट B05, then MVI let's say that C, let's say that again 05, and then add this 2 number. मैं आपको यहाँ पे हम क्या सीखना चाहते हैं, हाउ टू जनरेट द इंटरप्ट एंड हाउ टू कॉल दिस सर्विस रूटीन. सर्विस रूटीन को कैसे कॉल कर सकता है. हैव वी डिड दिस, ये एग्जीक्यूट किया था हमने, वो ऐसे किया था हमने, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. ओके. ओके, सो सेम थिंग, दिस इज फॉर मेमोरी इंक्रीमेंटेशन. ये सिर्फ यहाँ पे मेमोरी इंक्रीमेंट के लिए है. चेक कर लो एक बार, वापस एग्जीक्यूट कर लो. चलो एग्जीक्यूट. यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको पता चलेगा देयर इज सम प्रॉब्लम ओवर हियर, और वो लिमिटेशन है ये सिमिलर की, इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है. क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो आप मुझे आइडेंटिफाई करके दो.
आर यू गेटिंग? आपको क्या करना है, ट्राई करो। एडिशन वाला लिखोगे तो ट्राई करो, सब रूटीन, मेमोरी वाला भी चलेगा, एडिशन वाला भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। सब रूटीन कॉल होना चाहिए आपका, दैट इज द मेन पॉइंट पर्पज ओवर हियर। आप एक बार सब रूटीन आपका कॉल होना चाहिए, दैट शुड बी द मेन पर्पस। ओके, प्रैक्टिस करो, मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं एग्जीक्यूट करके बताऊंगा, तब तक के लिए ट्राई करो, कुछ सॉल्यूशन करने की ट्राई करो, मैं बता रहा हूँ आपको जो प्रॉब्लम है वो मैं सोल्व करके बताऊंगा।
Yes, Ria, you can present your screen. Sir, is it visible? Just a moment. Yes, it is visible. Sir, I have did this addition program और Okay, उसका आउटपुट आ रहा है okay, this add C. okay. So now let's Go to memory, clear memory, and then again write it. जब आप yes. यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हर एक बार आपको पहले क्लियर मेमोरी करना होगा, देन राइट योर इंटरप्ट सर्विस रूटीन. इंटरप्ट सर्विस रूटीन में आप जो लिखना चाहते हो वो लिखो. हाँ, सपोज यू वांट टू राइट एड सी. Okay, now close it. Okay, then assemble your program. सर पहले RST 5.5 इनेबल करना पड़ेगा नहीं ना? नहीं, assemble करना पहले. Now Okay. execute your program. Okay, अभी आपको करना है तो हाँ, पहले आप एक्टिव करो. अब हाँ, वो जनरेट होगा. तो आप देखो 01 आ गया. हाँ यस सर. सर पर ये काउंटर वाला नहीं हो रहा है. वो क्या हो रहा है, ये सिमुलेशन, ये जो हमारा सिमुलेटर है उसका एक प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आपको अभी मेरी स्क्रीन शेयर करके बता रहा हूँ. बट फर्स्ट ऑफ ऑल अदर्स, ये जो सिमुलेटर है उसकी एक लिमिटेशन है, इसके लिए ये नहीं हो रहा है. Okay, let me share my screen. Let me explain you what I have did and what is actually. अगर यही चीज आप किट पे करोगे, सिमुलेटर किट पे, जो हमारी ट्रेनर किट है उस पे करोगे तो हो जाएगा. यहाँ पे इंटरनली वो डिसेबल नहीं हो रहा है इसलिए. ओके, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल, इज माय स्क्रीन इज विजिबल. ओके, सो ये स्टेप्स आपको हर एक बार फॉलो करने होंगे. पहले क्या करना होगा, यू नीड टू क्लियर द मेमोरी. दिस इज व्हाट आई हैव डिड. मैंने वही प्रोग्राम, वही कुछ है, मैंने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन है वो थोड़ी निकाल दी है, नथिंग एल्स. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट इन सबरूटीन jmp and then let's say 3000h. Okay, now this is my memory. Now I am assembling my program. Program starting location is 200 and this is my program. Okay, okay, so now we will monitor over here our registers. So I'm executing it step by step. So first it will initialize stack pointer. Okay, then ei. So ये हर एक स्टेप आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना होगा. जैसे आप ei करोगे यहाँ पे क्या होगा, ये फ्लैग 1 होगा, I equal to 1. Now observe this, we are loading 08 and sim instruction. So यहाँ पे जैसे ही sim instruction लिखोगे ये bit 1 होगा and this all bit will be 0. So ये देखो आप, so observe here. So we are enabling our interrupts, interrupt mask bit हम enable कर रहे हैं. Okay, then we are initializing our register A with 00. So अब A की value 00 से initialize होगी. So now this is A equal to 00. Now increment. So increment 0 1. This will be continuously, your program counter will be continuously executed. So आप यहाँ पे यही प्रोग्राम में चलता रहेगा. अभी कब तक चलता रहेगा, until and unless I will press, I will generate the interrupt. अब मैं यहाँ पे interrupt generate कर रहा हूँ. So जैसे ही interrupt generate करूंगा तो वो current executing instruction complete करके next instruction पे आपका interrupt call होगा. So that let's say that I am generating interrupt.
So this is, I have pressed 1 over here. Now whenever I will click forward, so it should go to the service routine. Just a minute. Let me stop it. Let me file again. Look, the logic is correct. Actually, this is a problem of our simulator because the simulator is not that much of standard. ये इतना standard simulator नहीं है, but for our practice we are using it. Yes, definitely you can limit the count value. वो तो आपके काउंटर के ऊपर डिपेंड करता है, आपको काउंटर की वैल्यू कहाँ तक कंटिन्यू करनी है. But our main problem is not counter right now. Main problem is how to jump to this routine. ये अभी हमने 6.5 के लिए किया. अभी मैंने किया था, ये प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट किया था, अभी हो गया था. Let me check what.
look at it. It enter in the interrupt service routine. ये interrupt service routine में गया. Right now look at this. We are in this interrupt service routine LXI H500. So जैसे ये मैं आगे जाऊंगा, so what it will do, increment this memory location. So you can observe it over here. 500 पे अब 01 हो गया. अब वो वापस ये हम यहाँ से एग्जिट होंगे इंटरप्ट सर्विस रूटीन में, बट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट अगेन इट विल एनकाउंटर EI. सो अब यहाँ पे EI वापस इसको मिलेगा तो क्या होगा, सो जैसे ही वापस इसको EI मिलेगा वो यहाँ पे क्या कंसीडर करेगा, 6.5 इज अगेन इनेबल, सो अगेन इट विल एंटर इनटू द रूटीन ऑफ 6.5. सो ये किसके रूटीन में जाएगा, वापस 6.5 के रूटीन में वापस चला जाएगा. सो अगेन इट विल गो टू द रूटीन ऑफ 6.5. सो वापस ये पुश PSW, push H, LXI. So वापस अब मेमोरी लोकेशन है वो क्या इंक्रीमेंट होगा, सो नाउ और मेमोरी लोकेशन इज 02. सो अगेन जैसे मैं वापस करूंगा तो अब मेमोरी लोकेशन होगा 03, बिकॉज ईच एंड एवरी टाइम इट विल बी कंसिडर दैट योर 6.5 रूटीन इज एक्टिवेटेड. 6.5 इंटरप्ट जनरेट हुआ है अभी. ओके, नाउ as soon as 6.5 routine we want to exit from 6.5 routine, 6.5 routine में से exit करना है तो यहाँ पे क्या करना होगा, we need to deactive this. So but यहाँ पे अब ये थोड़ा प्रॉब्लम है. So अभी ये बाहर नहीं निकलेगा, रिटर्न इंस्ट्रक्शन पे स्टॉप हो जाएगा. Why? Because they are it is not getting a return address. वो उसको रिटर्न एड्रेस वापस नहीं मिल रहा है. So क्योंकि वो जो लास्ट टाइम जो कॉल किया होगा वो किसकी वजह से कॉल किया होगा, यहाँ पे. सो रिटर्न एड्रेस अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, स्टैक मेमोरी यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, सो यहाँ पे आप देख सकते हो लोकेशन क्या है 400. तो ये जो यहाँ पे रिटर्न एड्रेस स्टोर हो रहा है वो क्या हो रहा है, सो दैट इज द प्रॉब्लम. ड्यू टू दिस प्रॉब्लम ओनली वी आर नॉट एबल टू गेट इट. 0409, that is the return address we are getting over here. So there is a problem, something problem over here in storing our return address. So we need to figure it out. Otherwise the program is fine. ये जो return address है वो कैसे आप चेक कर सकते हो, आप यहाँ पे देखोगे मैंने स्टैक पॉइंटर को किससे इनिशियलाइज किया हुआ है, 400 से. सो पहले क्या होगा, सो फर्स्ट स्टैक पॉइंटर विल डिक्रीमेंट बाय 1 एंड रिटर्न एड्रेस विल बी स्टोर ओवर हियर. सो मल्टीपल टाइम्स आपका रूटीन कॉल हो रहा है, बट मल्टीपल टाइम्स आपके इंटरप्ट ये जो रिटर्न एड्रेस है वो स्टोर नहीं हो रहा है, एक ही जगह पे वो ओवरराइट हो रहा है. सो दैट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर. एक्चुअली ये रियल किट पे ऐसा नहीं होता है. रियल किट पे तो जैसे ही इंटरप्ट जनरेट होगा, इंटरप्ट जनरेट उसका इंटरनली प्रोसेसर वो सब कुछ मेंटेन करेगा. इट विल बी मेंटेन बाय प्रोसेसर. देन whenever there will be any interrupt is generated, so it will store return address on stack. स्टैक में आपका रिटर्न एड्रेस स्टोर हो जाएगा और जब हम रिटर्न इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो वापस वहां से पॉप होगा. सो दैट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर. ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है, इसलिए आपको प्रॉपर, हाँ आपको काउंट मिल जाएगा. आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, सो ये जो मेमोरी लोकेशन है, इफ यू विल ऑब्जर्व हियर, सो वी हैव कीप 6 टाइम जो मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड किया था, तो 6 टाइम तक मैंने ये 6.5 को एक्टिव रखा था. बाद में मैंने इसको 0 किया था और हम वहां पे रिटर्न करने की ट्राई कर रहे थे, बट दैट इज प्रॉब्लम ओवर हियर. रिटर्न एड्रेस उसको नहीं मिल रहा है. दैट इज द ओनली प्रॉब्लम. So ultimately, what is the meaning for this program is how to use this interrupt service routine and how to execute it. Interrupts, ये जो tool है उसमें जो functionality है उसमें generally it has considered that we will generate only interrupt one time and then we will that interrupt service routine should be called only one time. उसने ये assume करके ये उसका कोडिंग किया होगा. So that's why they have not considered multiple time whenever the same interrupt service routine will be called. So what will happen? If you will do it for one time only, then you will get the correct answer. आप ये अगर यही प्रोग्राम एक ही टाइम एग्जीक्यूट करके और वापस एग्जिट हो जाओगे, सिर्फ एक ही बार इंटरप्ट सर्विस रूटीन कॉल करोगे, whenever if you will call it interrupt service routine only one time, then it will be completely fine. But if you will execute your interrupt service routine multiple time, we are not enabling it every time. This is, we are assuming that यहाँ पे आप 1 रखोगे और EI इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो वो
इंटरप्रेट क्या करेगा, इट विल इंटरप्रेट दैट योर 6.5 इज स्टिल एक्टिव। जो हम डायग्राम जो मैंने आपको, जो हमारे क्वेश्चंस जो सेकंड सेशनल एग्जाम के क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए थे, उसमें कुछ ऐसा था कि मैंने आपको क्या बोला, हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि 6.5 एंड 5.5 आर व्हाट। सो यहाँ पे इसका रूटीन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यू आर कीपिंग अलाइव इट फॉर दिस मच ऑफ टाइम। और यहाँ पे आपको सपोज ये जो माइक्रो सेकंड टाइम था, वहां तक आपका इंटरप्ट रूटीन कॉल हो गया। वापस यहाँ पे क्या चेक होगा, इज देयर एनी इंटरप्ट, या इंस्ट्रक्शन आएगी तब क्या चेक होगा, इज देयर एनी इंटरप्ट इज अलाइव। So yes, 6.5 is still alive. So it will again go and enter 6.5 routine. अगर आपने इससे पहले ही आपने इसको जीरो कर दिया होगा, यहाँ पे ही इसको जीरो कर दिया होगा, तो ये आपका साइकिल ये क्या होगा, इट विल बी लाइक दिस. So you have already entered in 6.5 routine, so it will be activated only for this one time. Your routine will be executed. Next time it will not execute your 6.5 routine. All of you are getting, or only 2 or 3 students are studying. 2-3 students को ही समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, बाकी सब क्या कर रहे हो? All of you are getting what is the problem, what we are doing right now. Okay. सो सौम्यदीप, यहाँ पे हमको क्या करना होगा, इसको 1 रखोगे तो वो इंटरप्रेट होगा दैट वी आर इनेबलिंग इट फॉर लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम, तो वो एग्जीक्यूट होता जाएगा। जो मैंने अभी एग्जीक्यूशन करके आपको बताया था, आपको सिर्फ एक बार करके देखोगे तो आपका पूरा ये प्रॉपर चलेगा। लेट मी राइट इट फॉर 6.2. Okay, now I'm showing it in the location. फिर यहाँ पे मैं रन करूंगा तो वो क्या करेगा, इट विल कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट। अगर मैं इंटरप्ट जनरेट ही नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली रन करूंगा तो क्या होगा, इट विल कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूटिंग योर काउंटर ही वो एग्जीक्यूट करता जाएगा। हाँ, अगर मुझे इंटरप्ट वाला प्रोग्राम करना है तो मुझे बीच में क्या, अगर सपोज यहाँ पे मैं अब ये सपोज मैं यहाँ पे 6.5 जनरेट कर रहा हूँ, 7.5 में लिखा है मैंने अभी। लेट्स से दैट आई विल जनरेट 7.5 and now I am disabling it. I mean, if let's say that I have I have disabled. So let me check what is there in memory location. कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है? So it will not do like that क्योंकि वो नहीं मिल रहा है इसको. That is the problem that we have discussed. So step by step execute करके मैंने आपको ये बताया था. So we will execute it step by step and observe our problem. इसको full run all at one करोगे तो नहीं आपको कुछ पता चलेगा. And yes, it might be possible that एक बार जब आप execute करोगे, you are not able to execute it properly. So आपको 2-3 बार ट्राई करना होगा. मैंने आपके सामने ही मैंने भी 2-3 बार ट्राई किया, उसके बाद ही ये कंप्लीट पूरा प्रोग्राम आपका सही होगा, फिर भी नहीं होगा. दैट इज जस्ट लिमिटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर. वो सॉफ्टवेयर की वजह से है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है.
सो यू कैन look at over here. यहाँ पे मैंने जो एक्टिव किया था, सो उसने ड्यूरेशन में वो 2 बार आपका रूटीन एग्जीक्यूट हो गया. So you can check up. Okay, follow the steps. You can follow these steps. First, you need to write the program like this. और उसमें आप एक ये भी स्टेक पॉइंटर भी एक बार इनिशियलाइज कर लो. इनिशियलाइज योर स्टेक पॉइंटर, mention push instruction as well as pop instruction properly. Write EI over here also, write return also. First of all, make program like this. ऐसा प्रोग्राम एक बना दो पहले. ओके, हो गया. अब क्या करेंगे हम? व्हाट यू नीड टू डू, क्लियर मेमोरी. क्लियर योर मेमोरी. ओके, देन गो टू द सब रूटीन, इंटरप्ट सर्विस रूटीन. 6.5 के लिए आप लिखो यहाँ पे JMP 300H. Now I'm closing this. वो आप यहाँ पे वेरीफाई कर लो. ओके, अब असेंबल करो आपका कोड. यहाँ पे अभी नहीं आया तो वापस मैं सब रूटीन में जाके वापस ये देखूंगा. यहाँ पे वापस नहीं आया तो मुझे वापस ये लिखना होगा JMP 300H. ओके, सो अब यहाँ पे जाके मुझे वेरीफाई करना होगा. यहाँ पे C3. ओके, यस, C30030 वो कोड यहाँ पे है. ओके, अब आप रन करोगे. सो इफ यू विल रन इट. ओके, तो ये आपका काउंटर चलता रहेगा. अब यहाँ पे आपको 6.5 को एक्टिव करना है. सो एक्टिव 6.5. सो जैसे ही एक्टिव करोगे वो इंटरनल रूटीन में जाएगा. अब इसको मैं वापस डीएक्टिव कर रहा हूँ. नाउ आई एम स्टॉपिंग माय प्रोग्राम, क्योंकि ये काउंटिंग तो कंटिन्यू चलता रहेगा आपका. सो अब आपको क्या ऑब्जर्व करना है, आपका लोकेशन, कौन सा लोकेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है 5000. सो वो लोकेशन पे कंटेंट क्या है मेरा. सो इट इज 85 टाइम मेमोरी आपकी इंक्रीमेंट हो गई. मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूशन में रखा था तो 85 times your interrupt service routine has been executed in this file. ये जो एग्जीक्यूट हो रहा था. Are you getting, Dinky? Otherwise you can share your screen. All other students, please try this. अगर आप ट्राई करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है. Okay? So this is your 7th experiment. Any doubt in this 7th experiment? So ये एक प्रोग्राम ही लिखना है आपको. और प्रोग्राम में आपको एक स्टेटमेंट भी यहाँ पे मेंशन करना है. ये जो पूरा 7th एक्सपेरिमेंट में आप लिखोगे कैसे, लैब मैनुअल में ये जो एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया हुआ है कि 7.5 व्हेन 7.5 अराइव्स ऑटो वेक्टर. सो यहाँ पे हम 7.5 की जगह पे क्या लिखेंगे, तो विल राइट इट दैट इफ 6.5 or 5.5 will be arrived, then we will jump to this particular location, and on this location is a part of a monitor program, or you can say that it is a very less memory, so we cannot write anything. Actually जो trainer kit है, in the trainer kit this is actually address of your ROM, which is a read only memory. So over there internally this monitor program is written, jump to 20CE. that is already written because it is a part of ROM, and ROM में ये already लिखा हुआ है. So trainer kit पे ये execute होगा. So 206E, and 206E, which is our address of RAM, but 206E से हमारे RAM start हो जाएगी, but that is again starting addresses.
सो वहां पे भी प्रॉपर स्पेस नहीं होगी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जंप टू 2300। सो ये जो हम लिख रहे हैं वो कि हमारा एड्रेस है, वो रैम का एड्रेस है अभी यहाँ पे, बट वहां पे हम क्या लिखेंगे, जंप टू 300h। सो नाउ यूजर विल राइट his subroutine at 300h, and then that is our subroutine. सो वही करना है आपको। और ये पूरी आपको सिम इंस्ट्रक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट एक्सप्लेन की हुई है। सो पहले हमको क्या करना होगा, स्टेप नंबर 1, इनेबल और इंटरप्ट, देन सेट योर इंटरप्ट मास्क बिट हम सेट करेंगे, देन इनिशियलाइज अवर हेक्स काउंटर विद 00, इनिशियलाइज मेमोरी पॉइंटर, एंड देन राइट अवर इंस्ट्रक्शन टू डिस्प्ले दिस काउंट। सो काउंट की वैल्यू हम डिस्प्ले करेंगे। सो यहाँ पे हम डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक रजिस्टर में स्टोर करके उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, बट एक्चुअली जब ट्रेनर किट पे ये परफॉर्म करेंगे तो हम इसको डिस्प्ले करते थे। एंड देन वी विल इंक्रीमेंट दिस काउंटर एवरी टाइम वेन एवर इट, सो हेक्साडेसिमल काउंटर है, सो वो इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब जब उसमें वी स्विच, सो वी स्विच मीन्स ये 7.5, लुक लेट मी ओपन दैट diagram, whether the diagram is there. ये जो पूरा जो देखो, ये मैंने हेक्स काउंटर का ये इसमें भी वो मैंने अभी ये पूरा प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है ऑन द काउंटर ऑन आवर किट। आई एम गोइंग टू प्ले दैट वीडियो। So look at this. This is I am executing the program which I have explained you. ये जो पूरा प्रोग्राम है वही है। So ऐसे आपका काउंटर यहाँ पे कंटिन्यूअसली डिस्प्ले होगा। Your counter will be there, so continuously suppose, और जैसे ही अब सपोज मैं यहाँ पे कोई ये जो वी स्विच है वो प्रेस करूंगा तो वो एक मेमोरी लोकेशन को इंक्रीमेंट करेगा। दिस इज द प्रोग्राम विच आई हैव एक्सप्लेन यू। ये प्रोग्राम जो अभी हमने डिस्कस किया वही प्रोग्राम है इन हेक्स कोड। बट ये जो वी वाला वी प्रेस करके यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यू कैन हैव लुक एट दिस। सो वी पिन है यहाँ पे, वो किसके लिए है, दैट इज टू जनरेट 7.5 इंटरप्ट। तो वो वाला जो मैंने कैप्चर किया था वो यहाँ पे नहीं है। सो वो सिर्फ एक यहाँ पे नहीं है, अदरवाइज ये पूरा वीडियो वैसा ही है। ये जो वीडियो आप देख रहे हो उसमें क्या होगा, काउंटर आपका कंटिन्यूअसली चल रहा होगा। जैसे ही मैं वी प्रेस करूंगा यहाँ पे, ये काउंटर सपोज अभी 4 है, तो मैं जैसे ही यहाँ पे वी प्रेस करूंगा तो वी प्रेस करूंगा तो रूटीन कॉल होगा। रूटीन में जाएंगे हम, रूटीन में क्या करेंगे हम, मेमोरी लोकेशन कौन सा कोई भी, सपोज 500 हमने कंसिडर किया तो वहां पे अभी जो वैल्यू है सपोज, सो कोई भी वैल्यू है सपोज वो अब इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगी। सपोज यहाँ पे प्रीवियसली 0 थी तो अब 0 से 01 हो जाएगी। एंड वी विल कम बैक टू द मेन प्रोग्राम अगेन, तो मेन प्रोग्राम में आएंगे। सो ये आपका काउंटर वापस जहाँ पे स्टॉप का किया था हमने वहीं से वापस कंटिन्यू करेगा। तो 04 से वापस कंटिन्यू करेगा 5 6 7 8 9। सपोज अब मैं वापस ये वी प्रेस करूंगा तो वापस क्या होगा, रूटीन एग्जीक्यूट होगा। अगेन इन दिस रूटीन व्हाट आई विल डू, 01 विल इंक्रीमेंट बाय 02, and again this routine will be exited. Again we will go to the main program, again your counter will be continuously, so it will be like that. So ये पूरा प्रोग्राम वैसे एक्चुअली ट्रेनर किट में हम ऐसे इंप्लीमेंट करते थे बाय प्रेसिंग दिस वी। सो वी इज कनेक्टेड विथ इंटरप्ट 7.5। वी किसके साथ कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड विथ 7.5। सो दैट इज ओवर हियर, दैट्स व्हाई इन आवर लैब मैनुअल इट इज गिवन विथ 7.5। 7.5 का ये पूरा एग्जांपल दिया हुआ है, बिकॉज वी कैन नॉट डायरेक्टली प्रोवाइड 5.5 एंड 7.5। उसका डायरेक्ट इनपुट यहाँ पे कहीं पे नहीं है हमारे पास किट पे, but 7.5 interrupt is connected with this VI. So VI is connected, it means that RST 7.5 is generated. So we will generate this. So suppose if you will press VI 4 times, so what you will get number 4 in the memory location that you have mentioned over here. So this is our program and you need to write this program. ये पूरा program आपको लिखना है।
ओके, ये पूरा प्रोग्राम अभी आप, ये जो प्रोग्राम है मैंने यहाँ पे अभी एक्सप्लेन किया, वो आप 6.5 के लिए लिख सकते हो, और आप 6.5 के लिए लिखो, 7.5 के लिए लिखो, 5.5 के लिए लिखो, किसी के भी लिए लिखो, इट विल बी फाइन। बट आपको ये स्टेटमेंट भूलना नहीं है, यू नीड टू मेंशन दिस स्टेटमेंट दैट ओ हियर सर्विस रूटीन वी आर मेंशनिंग दिस जंप। सो जिसके लिए आपने लिखा है, सपोज 7.5 के लिए लिखा है, तो 7.5 में आप जंप लिख रहे हो, तो आप कौन से लोकेशन पे लिख रहे हो, 003C, वो आपको क्लियरली मेंशन करना है इन एग्जाम ऑल्सो एज वेल एज इन your lab manual, in your lab work also, experiment also. Okay, any doubt? यहाँ पे कोई क्वेश्चन है? So this is our experiment number 7 that we have did it today. Experiment number 7 हमने आज complete किया. Any question, any query? Look, it might be possible that few of the students are not able to implement it, but if you will follow the steps properly, and what is the problem you will face, that also I have mentioned you. मल्टीपल टाइम सब रूटीन कॉल हो रहा है तो उसको रिटर्न एड्रेस नहीं मिल रहा है, बिकॉज दिस डिजाइनर ऑफ दिस सिमुलेटर हैज ऑलरेडी एज्यूम दैट वी विल कॉल ओनली रूटीन वन टाइम, सो वो मल्टीपल टाइम रूटीन को आपको आपके स्टैक में स्टोर नहीं कर रहा है रिटर्न एड्रेस को. दैट इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग ओवर हियर. Okay, so let me give you the our next program, next experiment number 8, which we already discussed so many times, and we have discussed this program also. So only I need to show you the working of that on our kit. Experiment number 8 मैंने already discuss किया हुआ था, yes or no? Experiment number 8, that is a generation of square wave using 8255. सो वो पूरा वापस आई थिंक एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी ने सेकंड सेशनल में भी वो बहुत अच्छे तरीके से लिखा है. हाँ, कैलकुलेशन, काउंटर की कैलकुलेशन में गलती हो गई है आपसे, बट अदरवाइज यू हैव रिटर्न द आंसर. सो व्हाट वी नीड टू डू फर्स्ट, सो स्टेप्स आपको पहले ही मैं वापस एक बार सिर्फ स्टेप बता देता हूँ. सो आई विल जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द स्टेप्स ओनली. सो फर्स्ट यू नीड टू इनिशियलाइज 8255 and we need to initialize a control word in which port C will be output port. We are don't worry about right now port A and port B. So first जो control word होगा, first control word, that is in which mode, whether it is in BSR mode or it will be in IO mode. So first control word will be in which mode? No, not in BSR mode. That's the problem. We need to first of all program our 8255. So 8255 will always start from IO mode. 8255 सबसे पहले आपको, ये आप याद रख लो, 8255 को पहले आपको कहाँ से स्टार्ट करना हो, ऑलवेज IO मोड में. क्यों? क्योंकि आपको ये कॉन्फ़िगर करना है कि पोर्ट ए आप कैसे यूज करोगे, पोर्ट बी आप कैसे यूज करोगे, पोर्ट सी कैसे यूज करोगे, तो वो कहाँ से कॉन्फ़िगर होगा. सो ओके, लेट मी ओपन द पीपीटी. आप सब भूल, यू आर, सो आप सभी ने यही किया है. Concessional 8255. So look at this. What you need to do. This is control word. What you need to do first. क्या करना होगा इसको, पोर्ट ए को आप सपोज ऐसा मान लो आपको अभी सभी ए बी सी तीनों को आउटपुट करना है, एंड यू वांट टू यूज ऑल इन बीएसआर मोड. आपको पोर्ट सी को बीएसआर मोड में यूज करना है, बट उससे पहले आपको क्या करना होगा, पोर्ट सी के साथ हम क्या कनेक्ट करेंगे. यहाँ पे पोर्ट सी जो है, इसका जो पोर्ट सी है,
इसमें से आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट फ्रॉम पोर्ट सी? स्क्वायर वेव। सो स्क्वायर वेव आपको किसके साथ कनेक्ट करना होगा, आउटपुट डिवाइस के साथ, तो ही आप ये स्क्वायर वेव ऑब्जर्व कर सकते हो ना। ये आपका क्या है, आउटपुट। सो पोर्ट सी को आपको पहले आउटपुट कॉन्फ़िगर करना होगा। और अभी कौन सा बिट हम करेंगे, PC4। सो PC4 इज पिन नंबर 13। सो PC4 वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर एज आउटपुट। सो PC4 को आउटपुट करना है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दिस शुड बी 0, क्योंकि ये कंपलसरी आउटपुट होना चाहिए आपका। इन सेम वे ये डोंट केयर, सो आप यहाँ पे भी हम 0 कंसिडर करेंगे, मोड 0। सो वी विल लोड दिस our first control word. This is our first control word that we will load. So our first control word will be, पहला कंट्रोल वर्ड होगा वो क्या होगा, 80H, and where we will write it, out into the control address, yes, 83. So यहाँ पे control address क्या होगा, so in this example our control address is, ये जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 8, उसमें जो हम 8255 यूज करने वाले हैं उसके एड्रेसेस आपको मेंशन किए होंगे, यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। सो दैट एड्रेस इज राइट नाउ 0B is the control register address. We will write it out to 0B. Okay, then we will design our control word for BSR मोड। अब आपको BSR मोड के लिए सेट करना है। सो BSR मोड में पहले हम सेट करेंगे कौन से, PC4 को। सो उसका कंट्रोल वर्ड क्या होगा, व्हाट विल बी द कंट्रोल वर्ड, अगर आप PC4 को सेट करना चाहते हो, सो व्हाट शुड बी योर कंट्रोल वर्ड, using BSR mode if you want to set PC4. No, why it is 88? Yes, it will be 08 and 09. It will be 08 and 09 because BSR mode में D7 always 0 होना चाहिए। D7 0 है तो वो BSR मोड होगा आपका। ओके, तो सेट करने के लिए 09 एंड रीसेट करने के लिए 08. Are you getting? Okay, so BSR mode, we will use it one by one. So first we will initialize accumulator, out it to the control register. So MVIA 09, out it to the 0B. Then we will call delay. So what will be the delay? Delay कितना होना चाहिए as per the requirement of our square wave. Square wave में आपकी requirement क्या है उसके हिसाब से. So we will call the delay, and then again we will reset the value MVIA 08, and then again we will, so that program I am going to execute it. Program समझ में आ गया आपको क्या करना है? Is it clear? So let me open the video जो मैंने आपके लिए बनाया है. Let me open the video, square wave using. Okay, so first of all, ये जो पूरा प्रोग्राम है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वो ये प्रोग्राम पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ. This is the first program. Look at this. 3E80 जो हमारा पहला कंट्रोल वर्ड है वो 380 फर्स्ट कंट्रोल वर्ड. We are out it to control register 0B. 0B is the address of our control register. Okay, so our next third instruction 3E09. So we are setting our port C4 PC4 will be set by BSR mode. बट अभी नहीं सेट नहीं होगा, उसको आपको क्या करना होगा, यस, आउट इट टू 0B लिखोगे तब. अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज कॉल डिले. सो CD डिले को मैंने लिखा है 00. सो डिले इज अवेलेबल एट 2200 लोकेशन. सो दैट इज अ कॉल डिले. नाउ रीसेट PC4. सो रीसेट करने के लिए 3E08. So this is 3E08. And then out it to 0B. So ये out it to the 0B. Now again call delay C30. So ये पूरा आपका चलता रहेगा. And last instruction is
जब jump to start again, so C304 start कहाँ पे दिया होगा मैंने, पीसी BSR मोड का जो पहली इंस्ट्रक्शन सेट वाली इंस्ट्रक्शन है वहां पे. ओके, सो नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम. सो दिस इज जस्ट रैंडम, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है अभी. यहाँ तक है आपका प्रोग्राम. ओके, नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग. सो अप टू दिस इज योर प्रोग्राम. Okay, now I'm executing the program. Run ये टू अब ये डिले का रूटीन मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे. दिस इज अ डिले रूटीन 3E 6E 3D. So nothing but just using single register I am generating a delay. So single register का यूज करके मैं यहाँ पे डिले जनरेट कर रहा हूँ. और now I am executing the program. So this is program. So now look at this. I'm oscillator में मैं आपको ये आउटपुट दिखा रहा हूँ. So this is our 82552. ये जो है वो 82552 यहाँ पे आप देख सकते हो. This is 82552 and I have connected this one end to the ground. ये जो है वो यहाँ पे आप ग्राउंड कनेक्ट कर सकते हो. And this is just 1 minute. Network, I have lost the network. Just wait 1 minute. I have joined it from mobile. Just 1 minute. Just wait 1 or 2 minutes. Network will be restored in 2 minutes. Yes. Yes. So I think वो आपको स्क्वायर वेव दिखे. और should I play that video again? Can you please tell me? Okay. Okay. So yes, look at it. Let me play that video again. Okay. So this is
So I'm executing the program over here, and now this is a probe that I have connected with the CRO, and through that CRO I will demonstrate you the square wave. So ये जो मैंने connect किया हुआ है, that is one end, and another end is connected with ground. So this is a square wave. Square wave. Okay, let me play the last part again. Square wave मैं वापस आपको दिखा रहा हूँ. Yes, so this is a square wave. You can observe here. आप यहाँ पे देख सकते हो. Over here, your PC4 is low, and over here, your PC4 is high. So for equal amount of time, it will remain low, and for equal amount of time, it will remain high, so that it will look like your square wave. So ये आपको square wave जैसा लगेगा. So it will be your square wave. ऐसे आपको square wave मिलेगा. This is a square wave. और इसकी frequency क्या होगी, इसका delay क्या होगा. So everything depends on what is our calculation. आप delay क्या provide कर रहे हो, delay की value आप क्या provide कर रहे हो, उसके हिसाब से इसकी width होगी. So width of that pulse will be decided based on the delay value which we will specify. So that is our routine. Is it clear? Now ये clear हो गया. ये मैंने आपको demonstrate करके बताया. Okay, the same thing I have demonstrated. I want to demonstrate the same thing using one of the another tool that is called Proteus. This is actually a designer tool for PCB designing and circuit designing. We are not using, actually the EC electronic guys are using this particular tool. जैसे आपने मल्टी सिम यूज किया था, हैव यू यूज मल्टी सिम यूज किया है आप सभी ने? यस और नो? हाँ, सो वैसे ही मल्टी सिम जैसे है उसका एडवांस वर्जन है. दिस इज, यू कैन से दैट Proteus सॉफ्टवेयर, एंड आई हैव इंस्टॉल इट एडवांस वर्जन. सो वो मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पे. इसका प्रैक्टिकल कैसे करते हैं? इफ टाइम विल परमिट, then in after our syllabus is complete, I will explain you 2 or 3 practical using this. But what I want to explain you right now, यहाँ पे मैं अभी आपको क्या explain करना चाहता हूँ, the same thing which I have demonstrated using that. Let's say that PC4 को हम अभी कर रहे हैं. PC4 अभी कर रहे थे. So PC4, let me connect the PC4 over here. Okay. So this is the same thing. Look, let me first of all clarify you this diagram. This is our 8255. ये जो है वो 8255 है, and this is 8255 port A, port B, port C. So port A is connected with some LED bar. So LED bar is there, so it will display LEDs over here. यहाँ पे आप जो भी डेटा प्रोवाइड करोगे उसके हिसाब से. These are the active switches. So इसको आप 0 1 1 0 कर सकते हो while execution. So this is what I have connected over here. ये मैंने यहाँ पे क्या कनेक्ट किया हुआ है, A0 A1. So I have connected it.